سورہ انعام شروع ہوتی ہے. بڑی عجیب و غریب سورہ ہے. اس سورہ کریمہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں تقریباً 49 ورسز میں 49 in 49 verses there are 49 proofs on oneness of Allah. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر 49 دلائل دیے گئے ہیں اور تقریباً 49 آیتیں 49 ورسز 49 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ کیا جائے. دیکھیے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا. ایک سوال آتا ہے نا کہ یہ کائنات ایسے ہی بن گئی, اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. سائنسداں نہیں مانتے, یا جو لوگ دہریے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. 2 سوالات ان سے کیے جاتے ہیں. میں 2 سوال ان سے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بنانے سے پہلے موجود تھے. اس لیے کہ کوئی کسی چیز کو بنا رہا ہے تو بنانے سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے خود کو بنایا ہے تو اس کا مطلب آپ اپنے وجود سے پہلے تھے. ہاؤ ایبسرڈ تھنگ اٹ از. بےہودہ بات ہے یہ کہ آپ نے آپ کو پیدا کر لیا, یعنی آپ اپنے پیدا کرنے سے پہلے موجود تھے. اس سے بےہودہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ لا زیستیت سے زیستیت نکلی ہے, یعنی مردگی سے. کوئی چیز مردہ تھی, نتھنگنس, یعنی the universe came from nothingness. It is also an absurd thing. یہ بھی ایک بےہودہ بات ہے کہ عدم سے کوئی چیز نکل کر کے آ گئی ہے, خود ہی بغیر کسی مؤثر کے خود بخود پیدا ہو گئی. یعنی ایک چیز مردہ تھی, پوری زندگی اس سے نکل کر کے آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نامعقولیت سے معقول چیز وجود میں آ گئی اور لا شعوریت سے شعور وجود میں آ گیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نامعقولیت سے معقول چیز وجود میں آ جائے, لا شعوریت سے شعور والی چیز وجود میں آ جائے, شعور وجود میں آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا ثابت یہ ہوا کہ اس تمام کریشن سے پہلے ایک ابدی وجود ہے جو سبب ہے اس تمام کائنات کی پیدائش کا, ان تمام چیزوں کی پیدائش کا. یہ مطلب ہے اس کا. یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, وجعل الظلمات والنور, اور تاریکی اور روشنی کو بنایا. تو پیدا کرنے کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا, اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کرنے کے لیے جال کا لفظ استعمال فرمایا. مل فرق بین ہذین اللفظین, مل فرق بین الخلق والجعل. جال اور خلق کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو خلق کہتے ہیں to bring something into existence from nothingness, عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا. الانشاء من عدم, عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا, that is called خلق. یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی, اللہ نے اس کو وجود بخشا. from nothingness, عدم سے وجود میں لانا, یہ ہے خلق. اور جال کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے کے بعد اس میں تصرف کرنا. والتصرف فی الخلق بعد الایجاد, ایجاد کے بعد اس میں تصرف کرنا, that is called جال. تو عدم سے وجود میں لانا یہ خلق ہے, اور وجود میں لانے کے بعد اس میں تصرف کرنا, that is called جال. اسی وجہ سے کہا وجعل الظلمات والنور. ایک سوال اور ہے کہ اللہ نے تاریکی کو جمع استعمال کیا, پلیورل ہے, ظلمتن کی جمع ظلمات, لیکن نور کو واحد استعمال فرمایا. نور کی جمع انوار نہیں ہے, ایسا نہیں کہا وجعل الظلمات والانوار, ایسا نہیں کہا وجعل الظلمات والنور. اللہ نے تاریکیوں کو پیدا کیا اور روشنی کو مفرد لایا گیا اور تاریکیوں کو جمع لایا گیا. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ نور, روشنی یہ اشرف ہے, اور اشرف چیز ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
वन्नहा अन यस्ततीब अर्रजुलु बियमीनिही, मना फरमाया कि कोई आदमी इस्तिंजा दाहिने हाथ से करे। दाहिने हाथ से इस्तिंजा करने से मना किया गया, इस्तिंजा बाएं हाथ से किया जाए। क्यों? इसलिए कि दाहिना हाथ अशरफ है। इसी वजह से आप सूरह नहल के अंदर देखेंगे तो वहां दाहिने हाथ के लिए वाहिद लाया गया है और बाएं हाथ के लिए जमा। अवलम यरौ मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी वश्शमाइली सुज्जतन लिल्लाह। अब आप देखें यहां कि यमीन वाहिद है, सिंगुलर है, और वश्शमाइल ये जमा है। तो जो बायां है उसके लिए जमा लाया गया और जो दायां है उसके लिए वाहिद लाया गया। अल्लाह अकबर, ये नुक्ता है इसके अंदर। तो नूर को वाहिद क्यों लाया गया? इसलिए कि नूर अशरफ है। अच्छा, हिदायत जो है, हक एक होता है, अल हक़ ला यतअद्दद, हक मुतअद्दिद एक ही होता है। मसलन एक लकीर हो बैन नुक्ततैन, फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के दरमियान अगर एक खत खींचा जाए तो अल खत्तुल मुस्तकीम, तो एक ही खत्त मुस्तकीम होगा। इसलिए कि दूसरा जब खींचेंगे तो उसके ऊपर होगा, फिर तीसरा खींचेंगे उसके ऊपर होगा, फिर चौथा खींचेंगे उसके ऊपर होगा। इसका मतलब यह हुआ दो नुक्तों के दरमियान सिर्फ एक ही खत्त मुस्तकीम होता है, एक ही खत्त मुस्तकीम होता है जी, दो होता ही नहीं है। इसी वजह से हक एक ही होता है, मुतअद्दिद नहीं होता। बातिल मुतअद्दिद होता है जी, बातिल मुतअद्दिद होता है। वजअल ज़ुलुमाति वन्नूर, और ये सब जानते हुए भी सुम्मल लदीन कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, जिन लोग अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं वो बराबर कर देते हैं। बराबर करने का मतलब कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों को हिसाब के लिए खड़ा करेगा तो ये इकरार करेंगे, इज़ नुसव्विकुम बिरब्बिल आलमीन, हमने रब्बुल आलमीन को बराबर कर दिया था अपने माबूदों के। तो ये बराबर कर देने का मामला है, यानी अल्लाह को किसी के बराबर नहीं किया जा सकता। एक चीज तो ये है। फिर फरमाया गया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वही ये देखिए होवा ये मारिफा है और अल्लज़ी भी इसमें मौसूल मारिफा है। अरबी का कायदा है कि मुस्नद और मुस्नद अगर मारिफा है फतुफीदुल जुमलत वल हस्र, तो जुमला हस्र का फायदा देता है, मतलब उसी ने ही तुमको पैदा किया है जी, उसके अलावा तुम्हारा पैदा करने वाला कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये मालूम हुआ मुस्नद और मुस्नद अलैह के मारिफा लाने से। किससे पैदा किया है? मिन तीन, मिट्टी से। अच्छा देखो, कहीं कहता है कि तौराब से पैदा किया, कहीं कहता तीन से पैदा किया, कहीं का हमें मसनून से पैदा किया। सूरह रहमान में है फख्खार से पैदा किया। ये क्या है? अलग अलग चीजें नहीं, मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ने, उसमें पानी डाल दो तो तीन, खाली मिट्टी हो तो तौराब है, और उसमें पानी डाल दो तो तीन है, और कुछ देर के लिए उसे सड़ने के लिए रख दो, सड़ जाए तो हमें मसनून है, और फिर सड़ करके टाइट हो जाए तो फख्खार है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। लिहाजा इनमें कोई तारुज़ नहीं है, हयत का फर्क है, बात एक ही है। अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, तौराब से, तौराब में पानी डाल दो तो तीन, और कुछ देर के लिए रख दो बदबू आ जाए तो हमें मसनून, और ऐसे ही रख दो सूख जाए और ठन ठन की आवाज आने लगे तो समझो फख्खार है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। एक सवाल और कर सकते हैं कि इंसान तो नुस्फे से पैदा होता है, माए दाफिक उछलते हुए पानी से पैदा होता है। जवाब उसका यह है कि खल्कुल बशरी मिन तीनिन बेएतिबारिल असली, इंसान की तख्लीक मिट्टी से असल के एतबार से है कि हमारे बाप आदम को मिट्टी से बनाया गया असल के। वह खल्कुल बशरी बिम्माइन दाफिक बेएतिबारिल फर्अ, फर्अ के एतबार से, अल मुतवल्लिद मिनल अस्ल। इसलिए कि हजरत आदम मिट्टी से बनाए गए, वो असल हैं, और उनसे जो बच्चे निकले वो सारे के सारे फरा हैं। तो असल के एतबार से मिट्टी हैं हम, और फरा के एतबार से हम मायदाफिक हैं, पानी से पैदा किया गया हमको। लिहाजा कोई तारुज नहीं है, साइंस है पूरी की पूरी, ये किताब नहीं है, अजीबो गरीब बुक है ये। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अब पैदा किया तुमको, पैदा करने वाला कौन? बात मालूम, उसी ने पैदा किया। एक किससे पैदा किया? मिट्टी से। फिर
सुम्मा कज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु, दो किस्म की मुद्दतें रखी हैं। एक है मुद्दतुद दुनिया, ये दुनिया कब तक रहेगी, अल्लाह अकबर, आगे फुल स्टॉप है जी जी। दुनिया की जिंदगी, दुनिया की मुद्दत पर फुल स्टॉप, यहीं तक रहना है इसको दुनिया को, उसके बाद इसके ऊपर कयामत नाजिल कर दी जाएगी सूर के जरिए। हाँ, वे कहा गया सुम्मा कज़ा अजला, उसके लिए एक मुद्दत है, यह मुद्दत दुनिया, और वह अजलुम मुसम्मन इंदहु, एक और मुकर्ररा वक्त है, क्या, मुद्दतुल उम्र, उम्रुल इंसानी ला हीन मौत ही, मौत के वक्त तक इंसान की जो उम्र है, कब तक जिएगा ये है। तो एक तो यह दुनिया की उम्र और एक है इंसान की उम्र, ये दोनों उम्रें लिख दी गई हैं अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह, उसी ने पैदा किया, किससे पैदा किया, मिट्टी से, किसको पैदा किया, दुनिया को, दुनिया में तुम हो, दुनिया की भी मुद्दत मुकर्रर कर दी पैदा करने के बाद, और तुम्हारी जिंदगी को भी मुकर्रर कर दिया है पैदा करने के बाद। क्या आयते हैं, अल्लाह अकबर। इन तमाम चीजों की जानने के बाद अल्लाह फरमाता सुम्मा तुम तमतरून, शक कर रहे हो तुम, शक की गुंजाइश है सवाल देगा, सुम्मा तुम तमतरून, फिर तुम शक करते हो, शक की गुंजाइश है। फरमाया वही अल्लाह है जो आसमानों और जमीनों में है, वो तुम्हारी छुपी हुई चीज को भी जानता है, तुम खलवत में क्या करते हो, वयालम यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, तन्हाई में क्या करते हो। एक हदीस यहां बयान कर दूं, लेकर जाओ यहां से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जमीन भरकर या बहुत सारी नेकियां लेकर के अल्लाह के पास आएगा, लेकिन अल्लाह उसकी तमाम नेकियों को हबा मंसूरा, बिखरे हुए गुबार की तरह बना देगा। ये कौन सा आदमी है जिसने बहुत सारी नेकियां की और उसकी नेकियों को गुबार बना करके उड़ा दिया गया। बताया गया कि ये ऐसा आदमी है जब ये तन्हाई में होता था, तन्हाई में, तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करता था। जाहिर में लोगों से मिलता था तो नेक बनता था, और जब तन्हाई में होता था तो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर लेता था। आज देखो, नमाज के लिए आए हुए हैं बहुत सारे लोग, तरावी पढ़ते हैं, 5 वक्ता नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन अपने कमरे में दरवाजा बंद करने के साथ मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं। वही खलो, जब ये तन्हा होते हैं तो ये अल्लाह की हराम करदा चीजों को किस तरह हलाल कर लेते हैं, इनके तमाम आमाल को गुबार बना करके उड़ा दिया जाएगा। लिहाजा तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला से और डरना चाहिए। बेहतरीन बंदा कौन है, जो अपनी तन्हाई अच्छी कर ले जी। तन्हाई में हो तो सिर्फ अल्लाह याद आए उसको, समझो ईमान है उसके पास, ये पहचान है उसकी। अगर मैलान नेकी की तरफ हो तन्हाई में तो समझो ईमान है, और तन्हाई में होने के बाद कोई नहीं देख रहा है, गुनाह की तरफ मैलान हो, अपने ईमान की खबर ले। पैदा किया, वो तुम्हारे छुपी हुई चीजों को जानता है, तुम्हारी एलानिया चीजों को जानता है। वयालमु मा तक्सिबून, तुम करते क्या हो ये भी जानता है। अल्लाहु अकबर। आदमी इसी आयत को खाली अपने जेब में रख ले, काफी है। वहु अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़ यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून, तुम्हारी छुपी हुई चीजों को जानता है वो, तुम्हारी एलानिया चीजों को जानता है वो, और तुम जो काम करते हो एक एक हरकत के ऊपर उसकी नजर है। अल्लाह अकबर। है कितनी अजीब बात कही है।